بعد میں اگر آپ کسی کو چاہیے ہو یہ لیکچر تو وہ یہ لیکچر میں سے یہ آ گیا جی، ریکارڈ اسکرین پہ آ گیا. میں منیمائز کرتا ہوں اس کو، یہ بھی منیمائز ہو گیا. اور یہ ہے سمپل پریزنٹ ٹینس. اوکے جی، فرسٹ آف آل سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. میرا ایک کوشچن ہے آپ سب سے، کیا سمپل پریزنٹ ٹینس فعل حال مطلق سمپل پریزنٹ ٹینس یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس can it be used to give the meaning of past؟ کیا یہ ماضی کا معنی دے سکتا ہے سمپل پریزنٹ ٹینس؟ جی سر دے سکتا ہے. ذرا سا لاؤڈر بولیں بیوی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر دے سکتا ہے سر، یہ فیوچر میں بھی یوز ہو سکتا ہے. بیوی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، لاؤڈر بولنا ہے. ذرا سا لاؤڈر بولنا ہے آپ نے، آواز نہیں آ رہی مجھے. میرا کوشچن تھا کیا سر یہ پریزنٹ ٹینس جو ہوتا ہے یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے سر. یہ از کنٹینیوس بھی یوز ہوتا ہے اور مینس اچھا وہ باتیں بات کی ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا میننگ بھی دیتا ہے. فائن. بات میرا کوشچن ہے کیا یہ پاسٹ کا ماضی کا معنی دیتا ہے؟ یہ ہے میرا کوشچن آپ سب سے. یہ سر ماضی کا معنی بھی دیتا ہے اور فیوچر کا بھی دیتا ہے. وہ ایگزامپل دیں جی. بہت اچھی بات. والدن گیو می این ایگزامپل. سر فیوچر کی جگہ پہ یہ طرح یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کل ہم نے پشاور جانا ہے سر، یہاں پہ ول اور شیر کا یوز نہیں ہوتا ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے. انگلش میں ایگزامپل دے بی بی. انگلش میں فار ایگزامپل آئی گو ٹو پشاور ٹمارو. I go to Peshawar tomorrow. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی اوپینین ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آن ہولڈ کرتے ہیں. آپ نے فیوچر کے دے دیا. چلو آپ بٹ یو آر کلوز، آپ بالکل نزدیک ہے. پاسٹ کا ایگزامپل دے. یو آر پریٹی کلوز. پاسٹ کی بھی ایگزامپل دے. آپ نے فیوچر کے دے دیا، پاسٹ کا ایگزامپل دے. پاسٹ کا سر جی سر پاسٹ کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں گے کہ اس نے کل یہ کام کیا تھا. وہ یہ کل تو کام اب یہ سمپل کام کر پریزنٹ چکا ہے. نہ ہوا نا. کیا تھا he did it yesterday. he did it yesterday جسے آپ کہتے ہیں. اس نے یہ کام کل کیا ہے سر، یہ پاسٹ کا ہے. ہاں تو پاسٹ ہو گیا نا. میرا کوشچن تو یہ تھا کہ وہ سینٹیکس اسٹرکچر سمپل پریزنٹ کا ہو اور میننگ اس کا پاسٹ کا ہو. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ دیکھیں یہ بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پروفیشنل لیول پہ ہم پڑھ رہے ہیں. بزنس کمیونیکیشن کے لیے پڑھ رہے ہیں. بزنس کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن، وہ بات چیت جو کہ بزنس منی میکنگ کے لیے استعمال ہو. جب آپ اخباروں کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں تو ہیڈ لائنز جو کہ گزشتہ وہ نیوز جو کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں، 15 گھنٹے میں ہوئی ہوں، اخبار کے پبلش ہونے کے دوران، اس سے پہلے ہوئی ہوں، 2 اخباروں کے پبلش ہونے کے درمیان، لائک گزشتہ 12 13 14 15 گھنٹوں میں، یا ریسنٹ پاسٹ ماضی قریب میں جو واقعات ہوئے ہوں، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اخباروں میں ہیڈ لائنز کی صورت میں آتے ہیں. فار ایگزامپل if you read the headline of a newspaper تو وہ کہتے ہیں کہ for example the president of Afghanistan arrives Islamabad. Afghan president arrives Islamabad. اب افغان president کل یعنی yesterday پاکستان آیا اور ہیڈ لائن چلتی ہے the Afghan president arrives 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 Islamabad اور full stop. میری آواز سب کو آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ افغان پریزیڈنٹ arrives اسلام آباد فل اسٹاپ. اس کا آپ دیکھیں کہ
सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन मानी इसका माजी का है। कुछ समझ आ रही है बात? हेलो, यस सर, आ रही है समझ। ठीक है जी। तो ये तो लैंग्वेज की ग्रामर की डेफिनेशन है। उर्दू में ग्रामर को सर्फ और नाहवा कहा जाता है। ये अरबी का लफ्ज है, उर्दू में सर्फ और नाहवा, इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। बाद लोग इसको ग्रामर कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। ग्रामर इसका एग्जैक्ट वर्ड है। ये सारी इसकी डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लें, इसकी आपको जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज है। मैं नेक्स्ट वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे आपको इस्तेमाल होगा इसका। ग्रामर की सब डेफिनेशन है। जो लैंग्वेज की डेफिनेशन है वो जोनाथन स्विफ्ट ने आज 150 साल पहले दी थी कि द यूज ऑफ राइट वर्ड एट राइट प्लेस मेक्स लैंग्वेज। द यूज ऑफ राइट वर्ड एट राइट प्लेस मेक्स अ लैंग्वेज। ये उसने कोई 150 साल पहले किया था। तो ये तो लैंग्वेज की डेफिनेशन। बाकी ग्रामर की डेफिनेशन या पढ़ लें, इनकी आपको ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। टेंस और टाइम, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसको भी मैं स्किप करता हूँ। या आपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स तो नहीं बनना ना, अगर आपने टीचर्स बनना होता तो फिर मैं आपको पढ़ाता। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आपकी जो आ जाती है प्रोफेशनल यूज़ पे, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी मैं स्किप करता हूँ। टाइम वर्सेस टेंस, ये आप मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपको शौक हो तो बेशक आप पढ़ें अपने शौक के लिए। ये टेंसेज हैं, ये सारे उसकी 12 के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम है, ये भी आपको पता है, ये भी स्किप करता हूँ। हमारा आता है सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टाइम। तो ये कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंस, पहली बात रिपीटेडली। पहली बात ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप मुझसे आसान उर्दू में पूछें तो मैं आपसे कहूँगा कि रोजमर्रा की बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई रिपीट, रोजमर्रा की बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रोजमर्रा की बातें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई टीच यू, यू स्टडी बिजनेस इंग्लिश, यू कम टू स्कूल फॉर एग्जांपल, यू गो टू कॉलेज फॉर एग्जांपल। अब कॉलेज जाने का काम रोजाना रोजमर्रा का काम। वी ड्रिंक वाटर, वी ईट फूड, हम रोज खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। ये एक रिपीटेड एक्शन है, रोजमर्रा का काम है। आप इसको ऑफन साथ लगा दें, जैसे एग्जांपल है कि खलील ऑफन या खलील ऑफ्टन विजिट्स हिज फैमिली, ये तब भी ठीक है। ऑफ्टन आप खत्म कर दें, खलील विजिट्स हिज फैमिली, इसका मतलब है कि वो गांव से बाहर रहता है, शहर से बाहर रहता है, तो अक्सर अपनी फैमिली को विजिट करता है। दूसरा से क्या, रेगुलर, एक रूटीनली एक्टिविटी, जैसे मैंने आपसे कहा रोजमर्रा के काम, ये आप ज़हन में रखें तो ये सारी एग्जांपल इजी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आई रिसीव बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम माय बैंक एवरी मंथ, ये एक रिपीटेड और रेगुलर एक्टिविटी की एग्जांपल, यानी रोजमर्रा। अगर रोजमर्रा नहीं तो रेगुलर हो सकती है। हैबिचुअल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल Ali drinks water before he goes to bed, एक आदत के लिए भी, और वही रोजमर्रा की बात आपके जहन में हो तो ये रूटीनली एक्टिविटी, तो उसमें भी आता है हैबिचुअल एक्टिविटी। एवरीडे, ये तो बात ही खत्म हो गई। तो रोजमर्रा की जो मैंने आपको पहले ही मिसाल दी, इसकी 2 लफ्जों की डेफिनेशन थी। एवरीडे एक्टिविटी आपका ऑफिशियल एक्टिविटी, ऑफिस के जो आपके काम है, आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज रिपीटेड भी हैं, रेगुलर भी हैं। जैसे आप डेली स्टडी करते हैं तो डेली, तो ये डेली में भी आ गया, रेगुलर में भी आ गया, रिपीटेड में भी आ गया, और एक लफ्ज में इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा रोजमर्रा। तो रोजमर्रा की जिंदगी की जितनी बातें भी हम करते हैं, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सर स्ट्रक्चर, ये सबसे पहला जी। कोई क्वेश्चन है सर? जी? सर ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये तो इसको हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल प्रेजेंट एक्शन के लिए ना जी सर? तो इसमें वो भी आता है, आपने तो कह दिया कि ये रिपीटेडली होता है और रोजमर्रा होता है। सर ये तो प्रेजेंट एक्शन को शो करता है। प्रेजेंट आपने देखिए इसका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, लेकिन जब हम पढ़ते थे अपने ज़माने में और अभी भी, आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ये इंडेफिनिट क्यों कहते हैं इसको? कभी सोचा इस पे? आप में से सब लोगों से मेरा क्वेश्चन है, सर इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट तो ठीक है, लेकिन ये हमारे आपके सवाल का जवाब नहीं देता। आपके सवाल का जवाब ये तब होगा जब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। इंडेफिनिट का मतलब है अनसर्टेन, गैर यकीनी।
We drink water. I drink water, but right now I'm not drinking water. At the current moment, I'm not drinking water. But usually I drink water. Daily I drink water. I frequently drink water. But it is not confirmed. It is not sure if I'm drinking water right now. कुछ समझ आ रही है बाजी? सर खलील often visit his village. सर इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि खलील used to go to his village. अच्छा, used to माजी का वो काम जो आप अभी नहीं करते. जैसे मैं used मतलब भी सिगरेट नहीं पीता और ये माजी की बात है. ये हाल के साथ आप इसको used to सर ये माजी की बात है. जी सर ये भी तो रिपीटेड है ना, मतलब खलील गांव जाता रहता है. हाँ, लेकिन अभी नहीं करता. ये यूज टू का सेंटेंस उस काम के लिए आता है जो आप अभी नहीं कर रहे. माजी में करते थे, रिपीटेडली करते थे, अभी नहीं करते. तो ये प्रेजेंट से इसका एज सच फिर ताल्लुक नहीं बनता. राइट सर. तो आप जब सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इनडेफिनेट कहते हैं तो इनडेफिनेट का मतलब है कि गैर यकीनी. इस वक्त हम ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये श्योर नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं इनडेफिनेट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हम अक्सर करते हैं. वही फिर आप घूम फिर के एक ही जो मैंने आपको सादा मोटे लफ्ज बताया, रोजमर्रा के काम. आप इसको रोजमर्रा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप कभी ईमेल भी चेक करते हैं. आई चेक माई ईमेल. आप कह दें आई चेक माई ईमेल डेली, तब भी ठीक. आई चेक माई ईमेल रेगुलरली, तब भी ठीक. आई चेक माई ईमेल हैबिचुअली. बाज़ लोगों को आदत होती है, काम होना बस ऐसे ही, बस टाइम, हाउ टू किल द टाइम, वो टाइम को किल करने के लिए करते हैं. लेकिन आप देखें तो ये सारा रोजमर्रा, बस ये एक लफ्ज आपने याद रखें तो इसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी. जी बीबी, क्लियर है? हेलो. जी सर क्लियर है. ओके जी, कोई क्वेश्चन करें. मुझे भी इंटरेक्टिव क्लास अच्छी लगती है. वन साइडेड मोनोलॉग अच्छा नहीं लगता, डायलॉग अच्छा लगता है. अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं ओपनली कह दूंगा भाईजान मुझे नहीं आता, स्टडी करके बता दूंगा. एनीवेज जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO अंग्रेजी का सबसे पहला सिंटैक्स स्ट्रक्चर है. बाकी सारी बातें इसके बाद आती हैं. इसका जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब हर वक्त ऑब्जेक्ट ही हो. ये ऑब्जेक्ट की जगह सी कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है. कॉम्प्लीमेंट जिसको ये कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को, इसको तकमील कुनिंदा भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट आदाब को कहते हैं, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट. और जिस तरह नए साल के कैलेंडर आते हैं तो ऊपर लिखे होते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्स, आदाब के साथ, तस्लीमात के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ. वो कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, वो कॉम्प्लीमेंट. और ये जो है ये है कॉम्प्लीमेंट. ये कंप्लीट से निकला है, ये जुमले को कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट होता है. मिसाल मैं देता हूँ कि he writes a letter, तो he सब्जेक्ट, writes वर्ब, letter ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट भी है. क्यों? कल हमने पढ़ा था कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है. तो राइट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए ऑब्जेक्ट मफूल होना जरूरी है. तो आप खामखा आप लगाएंगे कि he writes a letter, तो ये ऑब्जेक्ट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है. लेकिन ऑब्जेक्ट अगर आप देखें, ये बात समझने की है हम नॉन नेटिव्स गैर अहले जुबान के लिए. ऑब्जेक्ट अगर उर्दू में कहते हैं मफूल. मफूल उसको कहते हैं जिस पे कोई फेल, कोई काम किया गया हो. he writes a letter, तो यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट तो है ही है, लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्ट है. लेकिन मैं कहूँ कि he goes to school, तो स्कूल पे उसने कोई काम नहीं किया, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है. इस पे कोई काम नहीं हुआ, कोई फेल नहीं हुआ, ये मफूल नहीं है. फेल फाइल मफूल मैंने आपको बताया था, कत्ल कातिल मकतूल, जुल्म जालिम मजलूम, फेल फाइल मफूल. तो यहाँ पे ये मफूल जिस पे फेल हो वो है ही नहीं. he goes to school मिसाल दे रहा हूँ, तो ये अब ये स्कूल पे तो कोई काम ही नहीं हो, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है. यहाँ पे जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, जॉन वॉशेस हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ. इसको क्लॉथ्स भी कहते हैं, इसको क्लॉथ्स भी कहते हैं, दोनों करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने दोनों को
सुना हुआ है अहले ज़ुबान लोगों को वो यूज करते हैं. John washes his clothes. यहाँ तक भी ठीक है. His clothes himself तब भी ठीक है. Singular verb हो, singular verb उसके साथ s आता है, plural verb हो उसके साथ es आता है. जितने गायबीन हैं, वाहिद गायबीन, सबके साथ वर्ब के साथ s आएगा. मैं गायब नहीं हूँ, फर्स्ट पर्सन, मेरे साथ आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं आई वॉशेस नहीं कहूँगा, मैं गायब नहीं हूँ, मैं हाजिर हूँ. यू वॉश योर क्लॉथ्स, आप गायब नहीं, आप हाजिर हैं, आपके भी वर्ब के साथ एस नहीं आएगा. लेकिन मेरे और आपके अलावा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उन सब के साथ वर्ब प्लस एस आएगा. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये जो जॉन है ये गायब है, तो जॉन गायब है थर्ड पर्सन, तो इसके वर्ब के साथ एस आता है. जॉन washes his clothes himself, और ये बात आपको पता है, थोड़ी देर में दे सकता हूं. आगे क्वेश्चन में हमेशा आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, ऑक्सिलरी चाहिए होता है, या तो ये क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर ही मौजूद होता है. अगर सेंटेंस के अंदर हो तो उसको आप शुरू में लगा देते हैं, जैसे आई एम अ बॉय, एम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिया और टू बी वर्ब भी है, आप इसको शुरू में लगा दें एम आई एम बॉय, तो ये क्वेश्चन हो गया. In case of simple present या present indefinite, he writes a letter. यहाँ पे helping verb कोई भी नहीं है, आपने अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना. यहाँ पे आप do यूज करते हैं, यही do writes का s लग के does बन जाता है. तो does John wash his clothes himself, और ये s या es एक ही दफा आता है, और ये s या es do के साथ add होकर does हो गया. ये s यहाँ पे आ गया, दोबारा washes नहीं होगा, wash होगा. s एक ही दफा आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सेकंड वर्ब हमेशा एक दफा आती है सेंटेंस में, ये हम पास्ट टेंस में डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन बनाने के लिए in order to make a sentence interrogative we need a helping verb or auxiliary, and normally we introduce it on our own if it is not present in the sentence. If it is present in the sentence, we just put it in the beginning. Just message random. Okay, अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे पूछते हैं जी. बुशरा तबस्सुम, जी बीबी, जी बुशरा. हेलो. नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. ओके फाइन. तो हेल्पिंग वर्ब ये बड़े काम की चीज़ है, हेल्प करती है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में. यू जस्ट पुट इट इन द बिगिनिंग एंड द सेंटेंस बिकम्स इंट्रोगेटिव. इफ यू ऐड नॉट after it, the sentence becomes negative. For example, the same sentence, John washes his clothes himself. In order to make it in negative, we add helping verb plus not. John doesn't wash his clothes himself. So ये s और es उस सूरत में जब आप वाहिद गायब की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन जब भी आप कहते हैं, ब्रेमगढ़ पश्तो में कहते हैं, सालिस उर्दू में कहते हैं, थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं. हमारी अपनी मेरा तो तरीका मैं ऐसा कहता हूँ, जो गायब है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो बंदा, वो आपका फादर फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपका ब्रदर यहाँ पे मौजूद नहीं है, एंड सो. नेक्स्ट आपका जी फाइनल एस और एस कहते हैं verbs that are used for third person. ये भी मैंने आपको बता दी, सारी वही बातें हैं. ये जो verbs हैं जो कि ch डबल s sh पे या x पर या z पर या o पर खत्म होते हैं, उनके साथ verb में es लगाते हैं. जैसे ch catch एक वर्ड है, catch, he catches the ball, catches, es इसके साथ आएगा. sh पे जो वर्ड एंड होता है, जैसे smash, he smashes the ball, smash, yes. class, अब class ये तो एक नाउन है, इस नाउन को हम वर्ब जब बनाए तो ये क्लासिफाई हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म क्लासिफाइड हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं. मिस एम आई डबल एस, मिस ये वर्ब है, इसका आपने ईएस लगा सकते हैं. मिसेस, ही मिसेस द क्लास. एक्स, चलें जी, एक्स की मैं मिसाल आपको देता हूँ. वर्ब फिक्स, ही फिक्सेस,
fixes, es आप लगाएंगे, he fixes the car. z का आपको मुझे कोई बताएं जी, z कोई वर्ब जो z पर खत्म होता हो, any verb that ends on z or z. Could you give me an example? Give me an example of a verb that ends on quad, sorry, quad. Z पर खत्म होता है सर, quad. अच्छा, quads, Sir, quads, buzz. buzz, yeah, you are absolutely right. Buzz एक बड़ी अच्छी example है. Buzz, you are absolutely right. Buzz, buzzes, बिल्कुल. ये एक यूनिक सा वर्ड है, आपको थोड़े अल्फाज ऐसे मिलेंगे जो z पर खत्म हो, ऐसे वर्ड खत्म होंगे. ओ के कोई एग्जांपल बताएं जी. Verbs ending on o. You got an example? Zoo sir. It's a noun, it's not a verb. देखें, अच्छा आपने बता दिया. Noun और verb में दो फर्क हैं. Noun का singular plural बनता है. Zoo, zoos, boy, boys, girl, girls. इसका मतलब ये noun है. और verb की second, third form और fourth form, ing form, verb की ये बनेगी. अगर इसकी second, third form और ing form, fourth form बनती है, तो ये verb है. अगर single plus singular plural बनता है, तो ये noun है. तो zoo का zoo नाउन है जो कि वर्ब भी है. जैसे कंघी करने को कॉम्ब, he combed his hair, उसने कंघी की. अब ये कॉम्ब नाउन भी है और ईडी लगा के आपने वर्ब भी बना दिया. कैच, ये भी एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है. कैच, मिस वर्ब भी है, नाउन भी है. तो क्वेश्चन था कि could you give me an example of verbs ending on o? Sir, mosquito. Hello. Mosquito is a noun, ये इसम है, नाम है, इसम. ये फेल. Hello. हेलो अगेन इट्स अ ग्रीटिंग. ये वर्ब फेल नहीं है, फेल काम नहीं है. गुड एग्जांपल, आप अपने ज़हन को यूज कर रहे हैं. दैट्स गुड. सर गो. ओ अभी तक मैं अब मुश्किल पीछे जा रहे हैं. गो, डू योर वर्क. डू से ज्यादा इजी कौन सी एग्जांपल होगी, और गो से ज्यादा. ठीक है जी, गो, गोस, डू, डज, ये इजी एग्जांपल है, मोटी मिसाल है. ओके जी, नेक्स्ट में हमारे पास आई. जो वर्ब वाई पे खत्म होते हैं उनके साथ जब एस लगते हैं तो हम उसको IES कर देते हैं. मोटी मिसाल आपकी स्टडी की है. ही स्टडीज हार्ड, STUDY, आखिर में वाई आ गया. वाई को आप IES में चेंज करते हैं. यहाँ पे स्टडी के एग्जांपल है, ही स्टडीज हार्ड. वाई को आपने IES में चेंज कर दिया. कोई दूसरी एग्जांपल है जी? सर फ्लाई. वेरी गुड. मैं इंतजार कर रहा था कि आप ये मुझे एग्जांपल देंगे और मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा. क्या स्पेलिंग है जी फ्लाई के? सर वरी है ना, वरी. WORRY, worry. You are absolutely right. तो आपके कोलिग ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी. फ्लाई, आपने फ्लाई का है FLY. Am I right? यस सर. अब आप फ्लाई को अगर आप देखें FLIES, फ्लाइज करें इसको. और एक मक्खी का नाम भी है, मक्खी को भी फ्लाई कहते हैं. यस सर. तो मक्खी का प्लूरल क्या होगा? फ्लाई. उस फ्लाई का FLY, उस मक्खी का प्लूरल क्या होगा? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कल आपने मुझसे पूछना है. पहले खुद कोशिश करनी है तो मुझे बताना है, क्योंकि इस तरह और भी फ्लाइज बात सुननी है. क्राई, वेरी गुड एग्जांपल जी. ये भी तब बिल्कुल ठीक है. कुछ ऐसे, एक आपने मिसाल दी फ्लाई की, और मैंने आपसे इसको थोड़ा सा आपको रिसर्च वर्क दे रहा हूँ. FLY फ्लाई, एक इसका वर्ब है फ्लाई, दैट इज टू फ्लाई, और एक इसका नाउन है मक्खी. जब आप इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए S लगाते हैं तो उधर जो मक्खी का प्लूरल बनाने के लिए S लगाते हैं. दोनों में कुछ बात बनती है, कुछ डिस्कशन के लिए मसाला तैयार होता है. ये कल आपने मुझे बताना है. मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि आप हमेशा प्लूरल
नाउन में जब आप सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, एफ को आप वी में बदलते हैं, वाइफ WIFE को WIVES कर देते हैं, ऐसे ही है जी. Yes, यस sir. सर हम वाई को भी IES करते हैं. वाई को भी IES करते हैं. IE जी सर. ठीक है, ये भी तो हमने यहाँ पे flies- पढ़ा कर. ठीक है, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं. मैंने आपको एक छोटा सा रिसर्च वर्क दिया है कि हम फ्लाई एज अ नाउन, फ्लाई एज अ वर्ब यूज करते हैं, फाइन. लेकिन एक जब हम एस लगाते हैं तो क्या फर्क आता है, इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आगे बात को बढ़ाता हूँ. एफ को हम वी में कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर प्लूरल जब बनाते हैं नाउन की सूरत में. लेकिन एक वर्ब है, मिसाल के तौर पर BELIEF, बिलीफ, अकीदा. Yes, sir. जैसे our heart sir. belief, staunch belief is that God is one. हमारा पुख्ता अकीदा है कि अल्लाह एक है. Our staunch belief, BELIEF, ये बिलीफ, इसको जब आप प्लूरल करेंगे तो थोड़ा सा चलिए मैं आपको बात बता ही देता हूँ. और अंग्रेजी में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एफ के साथ आए तो वो नाउन है, और वी के साथ आए तो वो वर्ब है. एफ के साथ आए तो नाउन, वी के साथ आए तो वर्ब. बिलीफ, अकीदा, और एफ की जगह वी लगाएं बिलीव तो फिर अकीदा करना, फिर ये वर्ब है. Yes, sir. BELIEF, belief. F, now it's a noun. But if you Noun. replace F with we, BELIEVE, now it's believe. Now it's verb. ठीक है जी? Verb. Yes, sir. ठीक है. कोई और एग्जांपल है आपकी इसी तरह की F और V वाली? Otherwise, I'm gonna tell you. Again, first I want you to recall your vocabulary. Any verb. सर अभी दिमाग में नहीं आ रहा. अच्छा, सर आप मैं बता आपको दें. बताता हूँ. रिलीफ एक्टिविटीज, इमदादी कार्रवाइयाँ जिसे आप कहते हैं, रिलीफ एक्टिविटीज. ये रिलीफ एफ को आप वी लगाएं तो क्या बनता है? फिर रिलीव्स, फिर वर्ब बन जाएगा. वर्ब Yes. बन गया. तो देख लिया आपने. Noun to verb. तो रिलीफ इज अ नाउन एंड रिलीव Noun. विद वी, दैट्स अ वर्ब. ठीक हो गया जी? अब नेक्स्ट जी. स्टेप, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपके पास आ जाता है रिलीव्स, रिलीफ और रिलीव्स, ठीक है, और द रिलीफ भी है आपके पास, तो रिलीफ को आप नाउन है, जब आप उसको प्लूरल बनाएंगे एफ वाले को तो आप वी में नहीं बदलेंगे. क्यों? सर फिर तो वो वर्ब बन जाएगा ना. That's the point. That is the point. तो अंग्रेजी में वो वर्ब्स जिनमें एफ आता है उसका प्लूरल में आप देखेंगे वो सारे ही एक ही फार्मूले को फॉलो नहीं करते कि एफ को वी में बदलेंगे. नो, अगर आपने एफ को वी में बदला तो नाउन विल बिकम वर्ब. आपकी सारी कहानी खत्म. ठीक है जी? Yes, sir. तो ये एफ और वी वाले वर्ब्स में आपने थोड़ी बहुत केयर करनी होगी. सर तो फिर यहाँ क्या करना होगा सिंपल में अगर एफ वाली वर्ड आ जाए? इसमें बहुत थोड़े वर्ब्स हैं. अभी मैंने आपको सिर्फ 2 की एग्जांपल दी है. यू हैव टू बी केयरफुल. वर्ब में तो आपको मसला नहीं होगा. वर्ब तो आपका रिलीव है या बिलीव है. ही बिलीव्स इन वन गॉड, शी बिलीव्स इन वन गॉड. इसके साथ आप एस लगाएं, एस ना लगाएं, इसके स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे एज अ वर्ब. लेकिन एज अ नाउन में फिर उसका एफ के साथ जब आप प्लूरल बनाएं तो आप कहेंगे उसमें तो एफ है, तो वाइफ की तरह WIVES करें, तो बिलीफ को भी BELIVES बिलीव करें. ये फिर नाउन में ये गलत हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. ये जो आप लिख रहे हैं, थैंक यू. मैं अभी यही चीज़ ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था. मैं अब बूढ़ा आदमी हूँ, आप लोग जवान हैं, आप टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आपको इन चीज़ों का पता है. थैंक यू वेरी मच. ये जो भी आप में से कर रहे हैं, थैंक यू. तो BELIEVE बिलीव और BELIEF ये बिलीफ नाउन हो गया.
اوپر تو لکھا تھینک یو, اور یہ بلیف نیچے جو لکھا یہ ورب ہے. تھینک یو آپ میں سے جس دوست نے بھی لکھا یا سہیلی نے لکھا تھینک یو. تو صرف ورب میں تو مسئلہ نہیں ہوگا, صرف ناؤن میں مسئلہ ہوگا. ناؤن میں جہاں پہ ایف آئے وہ آپ نے وی میں کنورٹ نہیں کرنا, ورنہ وہ ورب بن جائے گا. کلیئر ہے جی؟ جی سر. یس سر. لیکن ہر جگہ پہ وائی کو آپ نے آئی ای میں نہیں بدلنا. کہتا ہے کہ ایڈ ایس with verbs ending in y having a vowel y. For example, pay. So vowel ہاں جی, پے میں آپ کا وائی آتا ہے, پی اے وائی, پے. یہاں پہ تو وائی آ گیا. یس سر. He pays. اچھا پے سر آپ کو پلے. ناؤن بھی ہے. پے تنخواہ کو بھی, سیلری کو بھی کہتے ہیں, اور پے سر پلے. بھی کہتے ہیں. ادا کرنا, فعل. مجھے پتا آپ کے ذہن میں یہی ہوگا, ادا کرنا, فعل. He pays his dues. He pays. پلے کھیلنا سر. Sorry. پلے کھیلنا سر. پلے والا. آپ کی آواز پلے کرکٹ. plays. Another example, plays cricket. Play. A آ رہا ہے واول سے پہلے, سوری وائی سے پہلے واول اے آ رہا ہے, تو دیکھیں وائی چینج نہیں ہوتا, تو ہر وقت ایک ہی رول فالو نہیں ہوتا. اصل میں آپ انگریزی زبان ہو کہ کوئی بھی زبان ہو, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلوئڈ ہے, یہ مایا کی طرح ہے. اس کو آپ فکس یا جامد نہیں کر سکتے کہ بس ایک رول ہو اور ہر جگہ اپلائی ہو, یہ ایسا نہیں ہوگا. بعض جگہ ایکسیپشنز اس میں آ جاتی ہے. موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ نے تو اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے. بالا کا مطلب اوپر. اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے, کوئی بھی قانون سے بلند نہیں ہے, تو یہ کیسا آپ کو لگے گا؟ کچھ بات کلیئر ہو رہی ہے جی؟ یس سر. تو یہ لینگویج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں 100% کوئی بھی فارمولا اپلیکیبل نہیں ہوتا. 100%. کوئی شاذ و نادر کوئی کیسز ایکسیپشنز میں سے ہوں گے کہ اس میں اس طرح کے فارمولاز اپلائی ہوتے ہوں. اچھا جی, ایک دوسرے میں آپ کو انگریزی زبان کی, اس میں تو آئی ہوپ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹو وربس, اس میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کو سائڈ کر لیتے ہیں. Dynamic verbs show action. They can be used in progressive sentences. Dynamic verbs جن میں حرکت ہوتی ہے, ہم ان کو حرکتی ورب کہتے ہیں. ان کی آئی این جی فارم استعمال ہو سکتی ہے, یہ میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا, تو زیادہ ٹائم استعمال اس میں ضائع نہیں کرتے. اسٹیٹو حالت سے نکلا ہے, اسٹیٹ سے. حالتی ورب, حرکتی ورب, ڈائنامک, حالتی ورب, اسٹیٹو. ڈائنامک ورب کا آئی این جی فارم پاسبل ہے, eating, running, jogging, playing, singing, ٹھیک ہے. اسٹیٹو حالتی ورب کا ING فارم پاسبل نہیں. موٹی مثال میں نے کل آپ کو, بڑی کامن ایگزامپل, جب آپ اپنے فادر سے کہتے ہیں I love you, تو اس کا مطلب آپ اس وقت اس سے لو کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ I'm loving you, I am loving you. آپ کہتے ہیں I love you. یا کوئی بدقسمت ہوگا کہ I hate you, تو اس کا مطلب ہوتا ہے I am hating you. لیکن کبھی کنٹینیوس پروگریسو کا مطلب یہ ہے جاری, کنٹینیوس. اور کبھی ING یوز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, کیونکہ اسٹیٹو حالتی ورب ایسے ہی ہوتا ہے. I like my class, یہ بھی ایک حالت کو شو کرتا ہے. I dislike my class, میری کلاس کے متعلق ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ I dislike my English class for example. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ ING اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے, لیکن مانی اس کا جریان جاری ہونے کا ہی ہوگا, کنٹینیوس کا ہی ہوگا. تو یہ باتیں پرانی ہیں. تو اس کو ہم کیٹیگرائز اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے forget, remember, understand. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض اوقات اغلاط العوام, کامن مسٹیکس میں ٹیچرز کہتے ہیں Are you understanding me? اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, تو یہ کامن اغلاط العوام میں آتی ہے. اس کے ساتھ ING انڈرسٹینڈ کے ساتھ نہیں لگا سکتے. ریممبرنگ غلط ہے, forgetting غلط ہے. یہ سارے حالتی اسٹیٹو وربز ان کے ساتھ ING نہیں آئیں گے. اور دیکھیں یہ آپ نے کم ہی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی. پوزیشن کے لیے, ملکیت کے لیے, اس کے ساتھ آپ ING نہیں لگا سکتے.
اگر آپ نے لگانا ہوگا تو ساتھ کوئی اور لفظ بھی لگائیں گے. فار ایگزامپل چلیے یہ پہلے کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ آتا ہے پریزنٹ پروگریسو ٹینس میں. اون ہی اونز اے کار, اس کے پاس ایک گاڑی ابھی بھی ہے, موجودہ وقت میں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہی از اوننگ اے کار, غلط ہوگا. ہی ہیز ہیزنگ اے کار, غلط ہے. ہی از ہیونگ اے کار. اب یہاں پہ ہی از ہیونگ اے کار, اچھا ہیو کے ساتھ آئی این جی لگتا ہے. یہ میں کون اس کا ایگزامپل دے گا جی؟ ہیونگ کوئی ایگزامپل دے گا جی؟ یوز کریں, اپنی میموری ریکال کریں. Use having in your sentence. Sir, I am having a bad headache. Yes, بڑی موٹی common example اس کی. I'm having a headache. ایک مثال بھی خوبصورت عجیب سی ہے کہ میرے سر میں ایک درد ہے. I'm having a headache. یہ مزے کی بات, میرے سر میں ایک درد ہے. ویسے ہی جیسے کہ my hair is brown. My hair is جیسے کہ ایک بال ہو. My hair I'm is having a جی I'm having a bad headache. Sir, برا درد ہو رہا ہے میرے سر میں. I'm having a bad headache. بھی لگا رہے نا اے یا آ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے. میرے سر میں ایک برا درد, میرے سر میں ایک شدید درد. اردو میں آپ کہیں کہ میرے سر میں ایک شدید درد ہے. میرے سر میں ایک شدید درد, یہ ایک والی بات غلط, لیکن انگریزی میں ٹھیک ہے. میرے تجربے کے جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں, تجریدی چیزیں جیسے درد ہو گیا, اس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں I'm having. لیکن کوئی مٹیریل چیز ہو جیسے گاڑی ہو, I'm having a car, تو یہ غلط ہے. I'm having a laptop, یہ غلط ہے. یہ مٹیریل مادی چیز ہے, اس کے ساتھ نہیں لگاتے. I'm having an eye on you, میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں. نظر, اس کا مطلب یہ غیر مادی چیز, تجریدی چیز. یس, مادی سر چیز. پھر میٹیریل کے ساتھ I have a car. یہ سر ہے لگتا ہے مادی چیز کے ساتھ have لگائیں. I have a car. I own a car. I have a car. آپ دیکھیں ایک جملہ میں یوں بتاتا ہوں کہ I was sitting in sorry سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ while I have a headache I sit in a car. اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. یہ صحیح سے جملہ بن رہی. میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں کو have اور having کو استعمال کروں, لیکن وہ سیٹنگ نہیں بنے. بارہ تو having تجریدی abstract چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے نارملی, اور have نارملی مادی چیزوں کے ساتھ. I'm having an eye on you. She is having a bad attitude. آپ لگا سکتے ہیں. She is having a good morning. having a good morning. اب یہ ساری تجریدی چیزیں ان کے ساتھ آپ لگاتے ہیں. میں نے جتنا دیکھا ہے اہل زبان نیٹو انگریزوں کو, یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اہل زبان یہ گرامر کے خلاف جا سکتے ہیں, چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ. ایک ان پڑھ انگریزی کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے کیونکہ اہل زبان ہے, اس کے پاس لنگوسٹک لائسنس ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 2 11 ہو, جو پہلے بتایا تھا آپ کو, لیکن کوئی انگریزی کا آپ کو سن کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 17 2 19 ہو جاؤ, یہ غلط ہو جائے گا. لیکن آپ اہل زبان آپ کہہ سکتے ہیں. آپ پشتو کہ آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ جس طرح چاہیں اس کے ساتھ گیم کریں, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. یہ آپ کے ساتھ لائسنس. نیکسٹ لاسٹ ون جی, ایٹیٹیوڈ, بیہیو, لو, ہیٹ, یہ سب ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں. یہ بھی اسٹیٹو وربس ہیں. سینسز میں فیل, ریسپونڈ. فیل آئی این جی فارم نہیں بتے, لیکن فیلنگ آئی این جی اس کا تو بنتا ہے. فیلنگ آئی این جی یہ تو بنتا ہے. کوئی ایکسپلین کرے گا جی اس کو؟ کس کو سر؟ فیلنگ, فیل اسٹیٹو ورب ہے. اسٹیٹو ورب کی آئی این جی فارم نہیں بنتی, لیکن یہاں پہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ فیلنگ ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں آئی این جی کے ساتھ, تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ جی سر فیلنگ ہم یوز کرتے ہیں.
वो तो सर हम कंटिन्यूअस में फिर यूज करेंगे फीलिंग. बात तो वही होगी ना No, बीबी कि sir. आईएनजी साथ लग गया. आईएनजी इनके साथ लगता नहीं है क्योंकि ये स्टेटिव है. क्यों नहीं सर? सर हम कहते हैं सेंटेंस में कि आई एम फीलिंग अ पेन. हाँ, बात आ गई. तो पेन जो है वो आपका एक बात. और दूसरी बात कि फीलिंग यहाँ पर नाउन है, जमा वाहिद इसका आप बना सकते हैं. फीलिंग, फीलिंग्स. फीलिंग्स, व्हाट आर हिज फीलिंग्स, उसके फीलिंग्स कैसे, महसूसात, महसूस और महसूसात. यहाँ पर वर्क की कैटेगरी से निकल कर नाउन की कैटेगरी में चला गया. दूसरी और तीसरी बात ये कि जब आईएनजी लगता है वर्ब के साथ तो वो जीरेंड बन जाता है और वो नाउन का मीनिंग देता है. तो फील, फीलिंग, ये फीलिंग जीरेंड है और जीरेंड जिसे अब आप नाउन कहेंगे तो जब ये नाउन है तो फिर फीलिंग और फीलिंग्स सिंगुलर प्लूरल बन सकता है. ये है इसकी राम कहानी. रिस्पॉन्ड एक बड़ा ऐसा नाउन, रिस्पॉन्डिंग आप कहते हैं, आपने सुना भी होगा, शायद कहा भी हो, लेकिन ग्रामेटिकली इसके साथ आईएनजी नहीं आना चाहिए. ग्रामेटिकली इसके साथ आईएनजी नहीं आना चाहिए. लोग यूज करते हैं, अगलातुल अवाम में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आना नहीं चाहिए. नहीं सर आई मैंने आपको अभी भी कहा कि जो चीज अगलातुल अवाम कॉमन मिस्टेक्स में आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल तो होती है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है. सर हम कहते हैं ना कि माई सेल इज रिस्पॉन्डिंग. सर रिस्पॉन्डिंग में लगता है. तो बीवी मैं भी ये कह रहा हूँ ना कि रिस्पॉन्डिंग आईएनजी अगलातुल अवाम में है. लोग अवाम उन्नास इनको यूज करते हैं लेकिन ग्रामर कहती है कि यह ग्रामर के रूल्स के मुताबिक गलत है. लेकिन जो चीज बिजनेस में आ जाए, मार्केट में आ जाए और कहने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला दोनों उसका एक ही मतलब दें तो फिर वो कहते हैं इट्स ओके, ये वैलिड है, अगर वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसका मीनिंग में कंफ्यूजन ना हो दोनों सेंडर और रिसीवर के एंड पर, तो हम कहते हैं इट्स ओके. बिल्कुल रिस्पॉन्डिंग. वो आप अक्सर फोन के बारे में कहते हैं इसके हिज फोन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो करेक्ट वर्ड इसका होना चाहिए कि हिज फोन डजंट रिस्पॉन्ड. ये मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि एक सेंटेंस है कि हिज फोन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये गलत है, इसको करेक्ट करें. वालेकुम सलाम. Sir, Rizwan is here. जी. May I interrupt you? Sure. Okay, sir. Your class timing is over because we are waiting for our class. So may you please end your meeting, please? Thank you very much, sir. You're welcome. Thank you. Thank you for With reminding apologies. Thank you for reminding me. जब हम क्लास में मेरे जैसे एक गायब दिमाग प्रोफेसर लगे होते हैं ना तो उसको फिर नहीं लगता कि वो कितनी टाइम दूसरों को. Thank you very much for reminding me. सर आप हमारे उस्ताद हैं, आपको ये कहते हुए हमारा मुंह नहीं बन रहा था लेकिन फिर भी आपको इंटरप्ट करना हमने कहा आप थक गए होंगे, आप आराम कर लें. No, thank you very much. मेरी अपनी नेक्स्ट क्लास भी है. Thank you. See you tomorrow. Take care. Okay, thank you very much. See you. Okay, someone. Thank you, sir. You're welcome.